बिकॉज जब तक आप रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कोर कॉम्पिटेंसी एक्यूरेटली. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज फर्स्ट. क्या लगता है आपको किसी भी कंपनी में कि रिसोर्सेज से आपका, जब आप कहते हो ना रिसोर्सेज, तो इससे क्या मतलब है आपका? तो आप कहते हैं कि सर किसी भी कंपनी में वी हैव एसेट्स इन्वेस्टेड, वी मेक इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, राइट? और इन्हीं एसेट को हम यूटिलाइज करते हैं और इन्हीं एसेट्स से हम रिटर्न जनरेट करते हैं. ये बेसिक आइडिया है बिजनेस का. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, so basically we are referring to the assets. Resources are nothing but the assets of any enterprise. Now, as far as assets are concerned, we know that asset may be tangible or there are some intangible assets with the organization as well. So what kind of assets we are talking about here? आप कहोगे both kind of assets. तो assets की अगर हम बात करें, it may be tangible, assets may be tangible और it may be intangible. Tangible भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है. जब हम टैंजिबल एसेट की बात करते हैं तो टैंजिबल एसेट का मतलब क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं सर इसका मतलब हो गया प्लांट, टैंजिबल एसेट का मतलब हो गया इक्विपमेंट्स. सो प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपीई, दैट इज आवर टैंजिबल एसेट्स. Likewise, we have different intangible assets also. Suppose we have patents. So patents are what? Intangible assets. We have copyrights. Those are what? Intangible assets. Or the reputation of firm means goodwill. These are what? Intangible assets. So assets may be tangible, assets may be intangible. Assets tangible हो सकते हैं, intangible हो सकते हैं. तो resources tangible हो सकती है, resources intangible हो सकती है. Because if resource means assets and assets may be tangible or intangible, it means resources may also be tangible and intangible. दोनों तरह के resources हो सकते हैं, tangible भी और intangible भी, किसी भी corporation में, किसी भी enterprise में. Now the second term is the capabilities. Resources clear हो गया आपका? क्या बोलोगे? Resources are nothing but the tangible and intangible resources what we have with the corporation or the organization. Let's talk about the capabilities now. What is capability? कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटीज अगर आप किसी फॉर्म के देखती हैं तो कैपेबिलिटीज का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज. फॉर्म के जो एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की एबिलिटी को हम कैपेबिलिटीज कहते हैं. आप क्या बोलोगे? कैपेबिलिटीज बोलोगे आप. इट रेफर्स टू ability to exploit resources. Resources को exploit करने की ability को we say what? Capabilities. So you will say that you may have different kinds of capabilities. जैसे आप कहते हैं you may have capabilities of marketing, तो आप कहते हो marketing capabilities, right? We can talk about what? Production capabilities and so on. Production capabilities and so on. So capabilities is basically ability to exploit the resources. Resources को exploit करने की ability को हम क्या कहते हैं? Capabilities कहते हैं. तो जरा समझो हम क्या, हमारा टॉपिक क्या है? रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज. तो रिसोर्स मीन्स व्हाट? एसेट्स, मे बी tangible, intangible of the corporation, and capabilities is basically ability to exploit these resources. इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? कैपेबिलिटीज कहते हैं. एंड दीज आर द कैपेबिलिटीज लाइक वी से द मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा. ठीक है, अब जरा समझो ध्यान से, आप इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा. अब जरा देखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेबिलिटीज. So when we talk about the capabilities, we say that capabilities are nothing but the ability to exploit the resources, right? So how can we exploit the resources? What we have to exploit the resources? How a business can exploit the resources? इसका मतलब वो resources की deployment की बात कर रहे हैं, resources की uses की बात कर रहे हैं. And resources का use कहाँ होता है? resources का deployment कहाँ होता है? किसके थ्रू होता है? तो आप कहते हो सब प्रोसेस के थ्रू होता है, रूटीन्स के थ्रू होता है. तो
अगर आप कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो आप एक सिंपल सा एस्पेक्ट दिमाग में रखना, दैट इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस एंड रूटीन्स। प्रोसेसेस एंड रूटीन्स, इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं और रूटीन्स होते हैं टू मैनेज interaction between resources, to convert input to output, So it's basically capability consists of processes and routines to manage interaction between resources, है ना। रिसोर्सेज क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करती हैं, और उन्हीं इंटरैक्शन को मैनेज करने के लिए, उसी इंटरैक्शन से बेसिकली कैपेबिलिटीज बिल्ड होती हैं। उन्हीं इंटरैक्शन को मैनेज करने के लिए आप प्रोसेसेस एंड रूटीन्स को यूज़ करते हैं। उन्हीं प्रोसेसेस एंड रूटीन्स के थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, टेक्निकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द कैपेबिलिटीज इज। कैपेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस एंड रूटीन्स टू मैनेज इंटरैक्शन बिटवीन रिसोर्सेज टू कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। नाउ फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिया था, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज को लिया था। नाउ अगर आप, इफ यू सी द मार्केटिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनी फर्म, यू विल फाइंड फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सबसे पहले आप कहते हैं कि योर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आर बेसिकली व्हाट, द पर्सन, योर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आर पर्सन हु आर द मार्केटर्स एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो ये आपका वो एम्प्लॉय है जो आपके सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नाउ देन यू हैव योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड सर्टेनली देयर विल बी पीपल हु विल मैनेजिंग व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड सर्टेनली यू हैव सेल्स पीपल, you have your salesman. So salesmen are there, salespeople are there who are basically selling your product in the market. So when we talk about the marketing capabilities, हमेशा याद रखना, then that is basically interaction of all these three things. इसी का interaction आपकी marketing capability को बनाएगा. So what you are trying to say here is कि sir, we have the marketing specialist, distribution and the sales people, and interaction among these marketing specialist, marketing capability is basically based on interaction among marketing specialist, distribution and the sales people. अब इन तीनों को साथ में काम करना होगा, so there need to be interaction and coordination. If interaction and coordination आप यहाँ मिस करते हैं, in that case capabilities cannot be built. So it's not matter of only marketing specialist who will be building the marketing capabilities. That is not possible. It's an interaction between all these three kind of people, और जहाँ से आपको marketing capability को आप build कर पाओगे. So आप क्या कहते हैं इधर, इनके बीच क्या चाहिए आपको, interaction and coordination. Interaction and coordination. That will give you marketing capability. That will give you marketing capability. Same will happen in the case of any kind of capability. अब क्या देखोगे कि ये interaction है basically different resources का. ये हमने define ही इसी तरह से किया है ना, कि ये interaction है processes जिसके through हम resources के interaction को manage करें. That what the capability is. तो आप क्या कहते हैं now, for example marketing capability is based on interaction between marketing specialists, distribution and sales people. इनके बीच का interaction जो है, that is basically your marketing capability. So are you clear with the resource and capability? What is resource? Resources are nothing but the asset of enterprise. And what is capability? Capability refers to the ability to exploit those resources. Capabilities consist of processes to manage interaction between resources, to convert input into output. अब ये आप किसी भी तरह के फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपने मार्केटिंग कैपेबिलिटी की बात करी, लाइक वाइज यू मे हैव योर फाइनेंस कैपेबिलिटी, योर R&D कैपेबिलिटी, है ना. अब R&D कैपेबिलिटी की ही बात कर लो तो किस में इंटरेक्शन होगा. तो आप कहते हो सर R&D करने के लिए वी नीड टू हैव द डेटा फ्रॉम मार्केट, तो मार्केटिंग आ जाएगा.
राइट फिर आप कहते हो कि सर फॉर R&D वी हैव टू वी विल डू द R&D देन आफ्टर वी हैव टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन के साथ उसका कोलैबोरेशन होगा कि टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की टेस्टिंग की जाए. Again you will see that there is interaction of marketing, R&D and production. Same will happen in the case of production capability. वहाँ भी आपको interaction of resources दिखाई देंगे, है ना. और ये जो interaction of resources हैं इसी को manage करते हैं with the help of processes and routine, and that how we create our capability in different fields. So this is called as capability. Capability is ability to exploit the resources. Capability is processes and routines which are used to manage interaction between resources while converting input into output. That's what the capability is, right? Let's talk about the next term, competency. अब ये capability से how you build competency. तो अब हम competency को समझते हैं, then we will go for the core competency. पहले किसको देख लेते हैं, competency को. So what is competency? ठीक है, तो इसको जरा देखो आप. Now एग्जाम्पल से कंटिन्यू करो, बहुत इजी वे में समझ में आएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. कॉम्पिटेंसी इज, सपोज आई एम टेलिंग यू अ कंपनी इज हैविंग कॉम्पिटेंसी इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अ कंपनी इज हैविंग कॉम्पिटेंसी इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. as we were discussing earlier, सेम इसमें आपको क्या दिखेगा. तो ये काम कैसे होता है कि जरा सोचो आप कि कोई भी कंपनी है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, ये कंपनी तो डिसाइड करती नहीं है. हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स. ये किस पे डिपेंड करता है, ये कस्टमर्स पे डिपेंड करता है. कस्टमर के क्या नीड्स हैं, कस्टमर के क्या वांट्स हैं. So certainly we will have to understand the need of the customer, though the company will sell their product through the dealer to the customer, मान लो. But we have to understand the need of the customer. तो कस्टमर के नीड को हम कैसे समझते हैं, तो हमने कहा कि सर हियर द मार्केटिंग विल प्ले इट्स रोल. और डीलर से भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कस्टमर से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और भी पार्टीज से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. और मार्केटिंग यहाँ एक्टिवली इन्वॉल्व होगा इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, उनके क्या वांट्स हैं, उनके क्या डिजायर्स हैं, उनके क्या प्रेफरेंसेस हैं, राइट. दैट नीड टू बी डिस्कवर्ड. अब ये जब तक डिस्कवर नहीं होगा यू कैन नॉट क्रिएट योर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट आप बनाते ही हो इसके रिस्पॉन्स में, इसको फुलफिल करने के लिए. नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स, व्हेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इट, देन वी टेक दैट टू द R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. वो क्या करता है, इस पे आधारित होकर R&D करता है, रिसर्च करता है. रिसर्च करने के बाद ये प्रोटोटाइप डेवलप करता है. प्रोटोटाइप मतलब एक सैंपल प्रोडक्ट इसने बनाया, और वो सैंपल प्रोडक्ट क्या करता है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकता है. बट उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा सकता है, ये बात R&D तो बता नहीं पाएगा. इसके लिए तो जाहिर सी बात है इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा किसका, प्रोडक्शन का आएगा ना. किसका इन्वॉल्वमेंट आएगा, प्रोडक्शन का. R&D एंड प्रोडक्शन दोनों मिलके आप क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे. और हियर वी विल बी डूइंग द फिजिबिलिटी एनालिसिस. जैसा मैंने अभी आपको कहा था, क्या करना होगा आपको फिजिबिलिटी एनालिसिस करना होगा. फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब हम देखते हैं कि उस कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट बनाना फिजिबल है या नहीं, इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, टेक्निकली फिजिबल है या नहीं. सो वी विल डू द फिजिबिलिटी एनालिसिस, एंड आफ्टर फिजिबिलिटी एनालिसिस वी डेवलप आवर प्रोडक्ट. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का. ये प्रोसेस है किसका, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का. अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर ये प्रोसेस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, तो क्या किसी एक एरिया में फोकस करके हमारा काम चलेगा, नहीं चलेगा ना. आप कहते हो सर दिस इज बेसिकली ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट. हमें साफ साफ दिख रहा है ये ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. और अगर आप कॉम्पिटेंसी इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो ये कॉम्पिटेंसी आप तभी गेन कर सकते हो जब आप ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो. यहाँ आपको मार्केटिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ आपको R&D का भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ आपको प्रोडक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट है. तभी तो आप इसको ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कह रहे हैं. तो इन सबका इन्वॉल्वमेंट है ना. तो आपको क्रॉस फंक्शनल एस्पेक्ट को देखना होगा. ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है. तो क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शन आपको दिखेगा, क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन आपको दिखेगा, राइट. देन दैट विल गिव यू व्हाट, कॉम्पिटेंसी. तो डिफरेंट कैपेबिलिटीज का आप क्या कहते हैं, क्रॉस फंक्शनल
integration of cross functional capabilities you will be seeing, and that will give you something called as core competency. डिफाइन करो एक लाइन में और ज्यादा क्लैरिटी आए. क्या बोलेंगे हम? कॉम्पिटेंसी इज क्रॉस फंक्शनल integration and coordination of capabilities. Cross-functional integration and coordination of capabilities. So if it is a competency in new product development, so that is basically integration and coordination among production capability, R&D capabilities and marketing capabilities. इनका coordination है. इनके coordination से you are getting what? You are getting competency in new product development. So competency is what? Cross-functional integration and coordination of capabilities. So competency in new product development is basically what? Integration and coordination of marketing, R&D and production capabilities. Marketing, R&D and production capabilities. Yes or no? इनके इंटीग्रेशन से यू आर एबल टू बी कॉम्पिटेंट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां आप क्या कर पाओगे? अच्छी तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपना कर पाओगे. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंसी. बात समझ में आई? तो आप क्या कहते हैं सर, इसका मतलब कॉम्पिटेंसी तो क्या है? इंटीग्रेशन है मल्टीपल कैपेबिलिटीज का. कैपेबिलिटीज क्या है? एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट रिसोर्स को कैपेबिलिटीज कहते हैं. तो वी हैव मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, फाइनेंस कैपेबिलिटीज, R&D कैपेबिलिटीज, सेल्स कैपेबिलिटीज एंड सो ऑन. और इन क्रॉस फंक्शनल कैपेबिलिटीज का इंटीग्रेशन गिव्स अस व्हाट? कॉम्पिटेंसी. दिस गिव्स अस व्हाट? कॉम्पिटेंसी. बात आ गई समझ में? तो दिस इज व्हाट द कॉम्पिटेंसी इज. अब जरा ध्यान से समझो. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोर कॉम्पिटेंसी. तो व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी? कोर कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है? देखो, एज्यूम करो कि वी हैव अ कंपनी हियर. लेट्स से वी हैव अ कंपनी हियर. This company is having, a different, let's say, divisions. So we have a division here. So this is our division A, correct? And there are other divisions as well, other businesses as well. So in division A, we have different functions. Let's assume करो कि हमारे पास बहुत सारे functions हैं. So we have production, okay? We have R&D. And we have marketing. In this way, we have different functions. Okay. अब क्या होता है कि in this division, we have production, we have R&D, we have marketing, and we can ensure interaction between these capabilities. So in production, we have production capability, ability to exploit resources, to convert input into output. Regarding production, same regarding R&D, so we have the R&D capability. Same regarding marketing, so we have the marketing capabilities. So we have production capability, R&D capability and marketing capability. Now within this division, we can do the integration and coordination of these capabilities. We can achieve what? Integration and coordination. Integration and coordination. Integration and coordination of these capabilities, yes or no? These capabilities, yes or no? So we can have the integration and coordination of these capabilities. ठीक है, यहां तक तो हम जान गए, समझ गए. अब देखो, if this capability, this competency, ये जो हमने competency क्रिएट किया है ना, ये जो हमने competency क्रिएट किया है, what is competency? So competency is basically what? Is cross functional integration and coordination of capabilities. So this is cross-functional integration and coordination of capabilities. Capabilities, production, R&D, marketing का cross-functional integration and coordination है. What we have achieved in division A, in our example. जो हमने division A में क्या किया है? Achieve किया है. So this is my competency. This is my competency. Now, if this competency is applicable to entire organization, यानी कि अगर ये competency is applicable to entire organization, अगर ये कॉम्पिटेंसी सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल हो, यानी कि डिवीजन बी के लिए भी और डिवीजन सी के लिए भी,
पूरे एंटरप्राइज पे आप क्या कर सकते हैं, इस कैपेबिलिटीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस कैपेबिलिटीज को यूज कर सकते हैं, इस कॉम्पिटेंसी को यूज कर सकते हैं, देन दैट बिकम्स कोर कॉम्पिटेंसी, देन दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी का हमने क्या कहा, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या हुआ कि हमने जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्रॉस फंक्शनल रिसोर्सेज है, इफ यू आर एबल टू अप्लाई दैट टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट इज कॉल्ड एज कोर कॉम्पिटेंसी। कुछ चीजें बहुत ही एविडेंट है इसमें से कि सर किसी एक एरिया में एक्सपर्टीज से यू आर नॉट गोइंग टू गेट द कोर कॉम्पिटेंसी। तो 5 to 15 एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज की हम बात करते हैं, एटलीस्ट 5 to 15 एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज की हम बात करते हैं, दैट गिव्स यू द कॉम्पिटेंसी, एंड व्हेन इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, दैट बिकम्स योर कोर कॉम्पिटेंसी। तो आपने कहा रिसोर्सेज बेसिकली आर एसेट्स, मे बी टैंजिबल, मे बी इनटैंजिबल, एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट those resources is my capabilities. So we can have different capabilities: marketing, finance, production, HR, etc. Then we say the integration and cross-functional integration and coordination of these capabilities is called as competence. So competence may be there in our division. So if that competence is applicable to entire organization, then that is called as core competence. वो क्या कहलाता है, कोर कॉम्पिटेंस कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया, कोर कॉम्पिटेंस हो गया। एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम यहां नोट सेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। कोर कॉम्पिटेंस को अगर हम यहां एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, हमारे एग्जाम्पल को थियरी में लिखना चाहें, तो हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज कलेक्शन है, ये किसका कॉम्पिटेंसी, इसका it is collection of competencies that crosses divisional boundaries is organization wide and is something what organization can do exceptionally well, जिस काम में आप सबसे माहिर होते हैं, that is your core competency. It is collection of competencies that crosses departmental boundaries. Crosses departmental boundaries. हमने कहा था it was of division A, but that is applicable to division B and division C and so on. It is collection of competencies. It is collection of what? Competencies. So what competency we have achieved in division A, that is applicable to entire organization, to division B and division C as well. It is something in which you are great, in something which are doing exceptionally well, better than others, right? That is your core competency. तो आइडिया क्या है, आप कहते हो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि रिसोर्सेज तो सबके पास होती हैं, सारे फर्म के पास वही रिसोर्सेज होते हैं। किसी इंडस्ट्री में अगर देखो तो every firm is using same resources. Which firm is using that resources in better way, that what matters, है ना? यही कहता है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी कहता है योर एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट योर रिसोर्सेज इज योर कैपेबिलिटीज, and that capabilities you have in diverse areas. So you have expertise in diverse areas, and integration of those expertise, those capabilities will give you the competency that can apply to the entire organization. That becomes the core competency. So if you have the core competency, it means you are doing things differently. आप उन रिसोर्सेज को, उन कैपेबिलिटीज को दूसरों से बेहतर वे में क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो. You will be able to create competitive advantage. So ultimately, core competency will lead towards creating competitive advantage, and you will win over the competition. तो ये बालक हो गया resources, capabilities, competence and core competency. I hope it is clear.